سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم. میں ہوں سعید رفیدہ اور میں فیاض نجار لے کر حاضر پیش قدم کا ایک اور شمارہ. ہمیں اپنے دن کا حصہ بنانے کے لیے شکریہ. آج کے شمارے میں شامل ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ کے بارے میں ہم جانیں گے کشمیری نوجوانوں کی رائے. میں یہی کہوں گا کہ ہر بال پہ میرا دل دھڑکتا ہے. اس کے علاوہ آج ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ جوڑنے کے لیے راہ ہموار کی. بیل کا معمول تھا کہ خالی وقت میں آواز کی لہروں پر تجربہ کرتی اور انہی اوقات میں خیال نے ان کے دل میں جگہ بنائی. مگر شروعات کرتے ہیں کچھ پرانی یادوں سے جن کا کشمیری تہذیب و تمدن سے کافی گہرا تعلق ہے. آپ جانتی ہو رفیدہ, ہمارے والدین اور بڑے بزرگوں کے دور میں کشمیر بہت ساری چیزوں کا مسکن رہا ہے, مگر وقت کی گردش نے ان سب کو ہم سے دور کر دیا اور آج کل کے دور میں ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. صحیح کہا فیاض. میں نے بھی اپنے بڑوں سے بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں سنا ہے جن کو سننے کے بعد ایک خوبصورت تصویر دل میں نقش ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کسی اور دنیا کا سفر کر رہے ہیں. اسی ضمن میں ہم نے پیش قدم میں اس چیز کی ضرورت سمجھی کہ ہم آپ کو کچھ ایسی کہانیوں سے وابستہ کرائیں جو مستقبل میں ہمیں پرانی روایات کو زندہ رکھنے میں مدد دیں. آز برونٹ 50 ؤری یا 100 ؤری اوس لبزِ اکھ لیج آسان, کتریو لیج. یہ ترامہٕ بانہٕ اوس نہٕ کینٛہہ, مِسہٕ بانہٕ اوس نہٕ کینٛہہ. ٲسۍ کتریوٮ۪ن لیجن منٛز رنان. دپان اوس اِنسان ہے آزا رنو پھرِ تہٕ ہاکھ. ییٚلہِ سُہ زنان موہنیو اوس لبہِ دانس تل گژھان, سُہ اوس لبہِ سۄ گاڈٕ یا پھٔر آسہِ ہا سۄ ٲس تلان, تمہِ پتہٕ اوس سۄ ہاکھ تراوان. شامنس ییٚلہِ یِوان ٲسۍ نفر دپان ٲسۍ ہا 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 کیٛاہ ہاکھ تہٕ پھرِ چھِ. برونٹھ ٲسۍ ٹانگہٕ خۄش اوس کران انسانس ٹانگس کھسُن. گۄڈنی ٲسٕس ہوٲنا یِوان اگر رٮ۪تہٕ کول آسہِ, ہوٲن ٲسٕس یِوان خۄش اوس کران ٹانگس پٮ۪ٹھ گژھُن. تِکیٛازِ تمہِ وِزِ اوس لبہِ سستہٕ قٕصہٕ, $1.5 یا 8 آنا اوس سوارِ. أسۍ ٲسۍ برونٹھ کٔرۍ کران کٲم, أسۍ ٲسۍ کارخانن منٛز آسان, دپان ٲسۍ أسۍ سینما وٕچھنہِ گژھان. ٹانگہٕ وٲلِس ٲسۍ ونان ہے یارا ٹانگہٕ چھِ تیار, ووٚنُس آ جناب, مگر فُل ٹانگ چھِ. ٲسۍ $1.5 تمہِ وِزِ دِوان پلیٹم ٹاکی تانٮ۪تھ. چھُ برونٹھٕ کٲلۍ میانہِ وقتس منٛز واٹھ کھیوٚمُت. أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ. واٹھ, مکایہِ واٹھ چھُنہ, سُہ اوس آسان تیُتھ, وٕنکٮ۪ن تہِ چھُ تیُتھُے سُہ پیٖسِتھ. ٲسۍ کھٮ۪ژر بناوان, مکایہِ واٹھس ٲسۍ بناوان کھٮ۪ژر, تتھ ٲسۍ تراوان گۄنٛگ. ٲس موج بیٚنہِ تیار کران سُہ, ٲس سۄ کھٮ۪وان مکایہِ واٹھ گۄنٛگ, تتھ ٲسۍ ونان کھٮ۪ژر. آز مٔشۍ سۄ کھٮ۪ژر تہِ مٔشۍ, ہر کٲنٛسہِ آز چھس تمہِ تہِ نیرُن تہِ تگان. وندس من دانہِ سُہ تہِ گوٚو کنڈمٕے. تیٚلہِ ٲسۍ دگان, مےٚ اوس نیران سُر توٚملس, تیٚلہِ ٲسۍ دگان سُہ تہِ. اَدٕ ٲسۍ کران ژۄچہِ تتھ, کھٮ۪وان ٲسۍ. وۄنۍ چھنہٕ تِم ژۄچہِ چلان کینٛہہ. بیٚیہِ ٲسۍ تیٚلہِ دِوان شُرِس بیگ نَکھس پٮ۪ٹھ بچس, اَتہِ اوس نیران سکوٗل.
बच्चन गाम क्या बत खाना चाह चे ना तह गाम क्या 4 बजान वातान गर पन बे बच्चे फर्स्ट क्लास आज बच्चे त्रावान सुबह शामन और तमिस हत बदलियाम त्यो दलील यह फाकै बेस आनान त्रनलिस डाकरे मज सुन वार मज अति चारान दिवान 15 बोतल शराब बोत आसान अति दिवान छुन अति तम करान अति मज गसान तथ कुठन त्रावान घास वथरुन अति करान कम अति लार त्रावान मो सीमट मो युथी अत पे लार त्रावान तुथी गसान बेमार तेल त्रावान वगवा त्रावान घास जेज चंब्र अति दिवान कमरस मज दरित अति आराम करान शंगान तेल त्राम देग तेल त्रावन देगन मज कतरवन देगन मज सुन रनान मज तथ सह ग क्या वन बह जन माज रनित आज अगर माज रन नश कोर मज अत वह क्या वन जन तवान आब इंद्र कतन अत करान कम जोर पचि अत आराम करान वो न तम जोर पचे कुन तो न तम इंद्र कुन वंदस मज शीन तकरीबन 4 फुट 5 फुट गावन मज तमें अगर जंगल कुन गो तोर गजवाल तत तम 8 फुट 10 फुट 12 फुट 14 फुट शीन लिहाजा अगर यम गाम करान कम तेल गरान छान नश खराव कंजन मज दान वनान यह सा यह साइकिल पैकल तेल खास क्या या तेल टंग चलावान टांगन पे तथ अगर कंस हेचुन तमिस कैसा पेवान दिन सह हेचनावन सह टांग चलावन गुर तथ गंडिस अड़न तमन कशर पे बगे बगन गुर तो तम चलावान तक ड्राइवर सह साइड छे मकान छे छे गुर अलग तमिस अलग तथ रेट वारिया 100 रुपये रेट रेट गो बोड़ 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये पेवान छान यह छे गुर कत तिल तमें हांगल हेंग हांगल हेंग तम जंगल तम पे बेमार इलाज तथ खुदा रशीन तेल हे कान दो तथ करान मालिश करान गोगज हफनावान गोगजार बनावान अभी आपने जो कहानियां सुनी उनको तैयार किया था इसहाक भट्ट ने। आज से कुछ हफ्ते पहले हमने आपसे पूछा था कि आप अपने बड़ों से कुछ अनमोल पुरानी यादों के बारे में बात कीजिए, खासकर मौसम सरमा के बारे में। हमारे एक मुस्तकिल सामीन अल्ताफ अली ने अपने बुजुर्गों से बात की और हमें लिखा है कि मेरी दादी, चाचा, माँ और बाकी दूसरे बुजुर्गों ने कहा कि बहुत अरसा पहले, लगभग 20 साल पहले, मौसम सरमा काफी सख्त हुआ करता था। सर्दी की शिद्दत काफी होती थी और दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को मिलती थी, कभी कभी -8 डिग्री सेल्सियस तक। उस दौर में लोग लकड़ी और घास से बने हुए जूते पहनते थे, जिसको कश्मीरी में खराव कहते हैं। आजकल बाजार में मिलने वाले जूतों से काफ़ी आरामदेह होते थे। अल्ताफ मजीद लिखते हैं कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे कच्चे मकानों के बारे में बताया, जिसकी छत घास की बनी होती थी और फर्श पर घास से बनी हुई चटाइयाँ बिछी होती थी, जिनको वागी कहते थे। वो मकान सरमा के मौसम में काफ़ी गर्मी देते थे बनिस्बत आज के पुख्ता मकानों से। अल्ताफ और लिखते हैं कि मेरे चाचा ने कहा कि एक बार पूरा दरिया सर्दी की वजह से जम गया और हम उस रोज पूरे दरिया में जमे हुए पानी पर चले और कुछ आबी जानवरों का भी शिकार किया।
الطاف آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اتنی اچھی باتیں شیئر کرنے کے لیے. کیا آپ کے والدین یا دوسرے بزرگوں کے پاس بھی ایسی ہی کچھ پرانی یادیں ہیں جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجیے. ہمارا ای میل ہے peshkadam@gmail.com. چلیے رک کرتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی اور. جب کبھی بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ کرکٹ مقابلہ ہوتا ہے تو کشمیر میں اس مقابلے کو لے کر کافی چرچا ہوتی ہے. پیش قدم کے اسحاق بٹ اور سجاد بٹ نے کچھ کشمیری نوجوانوں سے اس سے متعلق تاثرات جاننے کی کوشش کی. پیش ہے آج کا کھیل کے رنگ سیگمنٹ. پاکستان اور ہندوستان کا میچ میرے لیے نہیں بلکہ پورے کشمیر کے لیے مختلف اس لیے ہوتا ہے. یہ مطلب ہم یہ میچ کی طرح نہیں دیکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک تہوار کی طرح ہوتا ہے ہر ایک کشمیری کے لیے. جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میچ ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ آج پورے کشمیر میں اسٹرائک ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہر بال پہ میرا دل دھڑکتا ہے. یہ امید مت لگائیے کہ نہیں وہ 11 پلیئر بھی انسان ہی ہے, کسی نہ کسی ایک ٹیم کو ہارنا ہی ہے. اتنا نہ ہو جائے کہ پھر آپ بھول جائے کہ یہ خالی ایک میچ ہے. جیسے ہمارا یہ ہمیں نہیں بنایا ہے کہ انڈیا پاکستان, ورنہ یہ بھی ڈفرینٹ الگ جو دوسرے کرکٹ سے وہ بھی اسی کی طرح ہے, خالی ہمارے مائنڈس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. چاہیے انڈیا یا پاکستان کا ہو یا آسٹریلیا اور انگلینڈ کا ہو, ہمیں خالی کھیل کا مزہ اٹھانا ہے. دیکھا جائے تو ایک گیم ہے, گیم کو گیم کی طرح لینا چاہیے, کسی دوسرے طریقے سے نہیں لینا چاہیے. آج کل دیکھا جائے تو کرکٹ کو ہم الگ ہی نظریے سے دیکھنے لگے ہیں, خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کے میچ. کچھ میں دیکھتے ہیں, ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ آج ریولز ہیں آمنے سامنے, جیسے دو دشمن آ رہے ہیں. لیکن اس طرح سے کرکٹ کو نہیں لینا چاہیے. لیکن جب بھی میچ ختم ہوتا ہے تو پلیئرز ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیکس کر رہے ہوتے ہیں یا گلے مل رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دشمنی سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیشہ دوستوں کی طرح رہنا چاہیے. وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, لیکن وقفے کے فوراً بعد کیا ایک کسان تاجر بن سکتا ہے؟ My dear friend, प्रिय सहेली, सप्रेम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. I hope this letter finds you the best of it. हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं. प्यारे दोस्त, हम लोग शांति और अमन के साथ क्यों नहीं रह सकते? क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? मैं तुम्हें देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, फिर भी दोस्त के नाते से मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ. हम आपके देश को बेहतर जानना चाहते हैं. I like to dance and sing. I love cricket, tennis, football, hockey, आलू का पराठा. I love wearing jeans. Do you? मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना है. और तुम्हें क्या बनना है? पता है, मेरे नाना भी लाहौर में पैदा हुए थे. मुझे भी एक दिन पाकिस्तान देखना है. Across India, school children are writing letters like these to their Pakistani friends. Imagine what will happen when this generation grows up. I love you. खुदा हाफिज. प्लीज जल्दी लिखना. आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर. आज के हमारे करियर काउंसलिंग सेगमेंट में पेश कदम की उमर खालिद हमें डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के बारे में जानकारी देंगे. बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत कोशा है. हुकूमत ने बहुत सारी स्कीमें बेरोजगारों के लिए वजूद में लाई हैं. ऐसा ही एक खुशाई कदम है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम. इस स्कीम के तहत आपको माली माउनत फराहम की जाती है. चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर अनंतनाग इस स्कीम की मजीद वजाहत इस तरह से करते हैं. की है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम एक है. फर्स्ट अगर बेरोजगार नौजवानों को हम देते हैं 1 लाख का कर्जा देते हैं 2 गायों के लिए, 5 लाख का कर्जा देते हैं 10 गायों के लिए. जेके बैंक से को हम स्पॉन्सर करते हैं, वो इनको लोन देता है और उसको फिर सब्सिडी आती है नाबार्ड से 25% सब्सिडी है और बाकी उसको सिर्फ 75 वापस करना पड़ता है. फायदा उठाएंगे तो 2 गाय 5 गाय 10 गाय हम इजीली पाल सकते हैं. दूध की भी यहाँ किल्लत है इस वक्त और मार्केट भी अच्छा है, लिहाजा उनको नौकरियों के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नौजवानों को चाहिए सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय इस स्कीम से जुड़े और अपने साथ साथ दूसरों के रोजगार का सबब बने. ऐसा मानना है मोहम्मद हुसैन डार का, जो कि इस स्कीम से मुस्तफीद हो चुके हैं. जवान पढ़ा लिखा जवान तुहद बेहतर ये तुम रुश्वत दिवन से रुश्वत पत फेरन 4 वरी 8 वरी 10 वरी जाय कर अकिस पत फेर आज लागो नौकरी पगह लागो नौकरी तम खुश बेहतर कि अगर तम ये मज पोस सर्व कर ऐसा वोल रोजगार बेस रोजगार दित. डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस से रब्ता करना होगा. ऐसी स्कीम्स को कामयाब बनाने के लिए अगर जरूरत है तो आपकी मेहनत और लगन की. दांतों और मसूड़ों का कैसे रखा जाए ख्याल?
नजमा फारूक हमें बताएगी आज की हमारे हेल्थ सेगमेंट में। अपने दांत और मसूड़े दिन में कम से कम 2 बार साफ करें। अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए हर 3 या 4 महीने बाद अपना टूथब्रश जरूर बदलें। अगर आप कॉफी या इसके जैसी दांतों को बेरंग करने वाली चीजें पीना पसंद करते हैं तो महीने में कम से कम 2 बार खाने वाला सोडा यानी कि फुल से अपने दांत जरूर साफ करें। अपनी खुराक में विटामिन डी को शामिल करना ना भूलें, क्योंकि विटामिन डी आपके जिस्म की कैल्शियम जज्ब करने की सलाहियत को बढ़ाता है, जो कि दांतों और मसूड़ों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा ताज़ा फल और पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं। साथ ही साथ चीनी कम मिकदार में लें और तेजाबी खाने से परहेज करें। मसूड़ों की अच्छी तरह से वर्जिश हो, इसके लिए खाने को सही तरीके से चबाएं और खुद को सेहतमंद रखने के लिए तंबाकू नोशी छोड़ दें। वक्त है एक छोटे से वक्फे का। जब हम वापस आएंगे तो सुनेंगे एक फनकार की कहानी और साथ ही बहुत कुछ। कौशर छु वक्त बोड़, कौशर छु दिल बोड़, कौशर छु प्रजवन तार, वलियो परजनाओ पन पान, पनुन पहचान छु संज करान अकि सकाफती मल 23 तो 24 मार्च। मुकाम छु कन्वोकेशन कम्प्लेक्स कश्मीर यूनिवर्सिटी। तुह हेक्यू अमिक हिस्स बनित तो तिम तमाम कौशर सकाफती चीज अस सूजित यमन सहित सोन मीरास जुड़ित छु। मजीद जानने बाबत करियो लॉग ऑन www.panunpehchan.com या करियो फोन यमन नंबरन पे 9797 768445 नत 9697 801008। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। टेलीफोन के बिना जिंदगी कैसी होती, खासकर आजकल के दौर में इस चीज का तस्वर करना ही मुश्किल नजर आ रहा है। हमें अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल को इस सहूलियत के लिए खराज तहसीन पेश करना चाहिए। पेशकदम के कौसर मुहिदीन आज हमें इसी ज़हीन इंसान के बारे में बताएंगे हमारे संगमील सेगमेंट में। मिस्टर वाटसन इधर आ जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये वो अल्फाज है जो टेलीफोन के ज़रिए की जाने वाली पहली गुफ्तगू के अल्फाज है, और ये अल्फाज किसी और की ज़बानी नहीं बल्कि खुद टेलीफोन को ईजाद करने वाले अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की ज़बान से अदा हुए थे। यूं एक इंसान के एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ था। वो सफ़र जिसने तमाम दुनिया को एक साथ समेट लिया, जिसे ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया। ये कारहाई अजीम 10 मार्च 1876 को अंजाम पाया था। ग्राहम बेल का जन्म 1847 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के मुकाम पर हुआ था। इनके वालिद का नाम अलेक्जेंडर मेलविली बेल था, जो एक माहिर लिसानियत थे। चनाची ग्राम को भी इसी किस्म की एक तरबियत मिली और एक जवान साल वॉइस ट्रेनर बन गई। 1870 में इस खानदान ने ओंटारियो कनाडा का रुख किया और यहाँ पर बेल ने सुनने की नेमत से महरूम लोगों को पढ़ाने का खानदानी पेशा जारी रखा। बेल का मामूल था कि खाली वक्त में आवाज़ की लहरों पर तजुर्बा करते, और इन्हीं अवकात में एक ख्याल ने उनके दिल में जगह बनाई। वो ख्याल था टेलीग्राफ जैसी मशीन के ज़रिए आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेल ने थॉमस वाटसन नाम के एक मैकेनिक की मदद ली। दोनों ने अनगिनत रातें एक साथ इस काम पर गुजारी। आखिर
1875 में मल्टीपल हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम करते करते बेल के दिमाग में टेलीफोन बनाने का आइडिया आ गया। इसने एक ऐसे आले को तैयार किया जिसे आवाज़ की लहरों को बरके रूह की सूरत में एक रिसीवर के जरिए दूसरे तक पहुंचाया जाता था। चौदह फरवरी 1876 के दिन बेल ने अपने टेलीफोन के लिए पेटेंट की अर्जी दाखिल करवाई। कुछ ही घंटे के बाद एक और अमेरिकी शख्स इलीशा ग्रे ने भी ऐसी एक अर्जी दाखिल करवाई। क्योंकि बेल ने अर्जी पहले दाखिल करवाई थी, इसलिए 7 मार्च को उन्हीं को ये पेटेंट मिला। 3 दिन बाद यानी 10 मार्च को बेल ने पहली बार टेलीफोन का एक कामयाब तजुर्बा बॉस्टन में अपने ही घर में किया। मई के महीने में उन्होंने बॉस्टन में ही वाक़ा अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के सामने अपनी इजाद को पेश किया और जून में सेंटिनियल एक्सपोजर इन फिलिपिया के सामने भी रखा। अक्टूबर में बॉस्टन और कैम्ब्रिज पोर्ट के दरमियान 2 मील के फासले तक पहली कामयाब टेलीफोन कॉल की। तजुर्बात का ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। फोटोफोन को लाइटरीज के ज़रिए आवाज़ पहुंचाता था और इसके अलावा ग्राफोफोन जिससे आवाज़ कैद यानी रिकॉर्ड की जाती थी के कामयाब तजुर्बे भी किए। सुनने की ताकत से महरूम लोगों के लिए अपना काम पहले की तरह जारी रखा। हेलेन केलर जो सुनने की ताकत ना होने के बावजूद एक मशहूर मुसन्निफ़ा और समाजी शख्सियत हैं के साथ भी काम करते रहे। अपनी इजादात से जो भी पैसा मिलता था उसको फलाही कामों में लगाते थे। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनने का भी शर्फ हासिल हुआ। आखिरकार 1922 ईस्वी में कनाडा में केप ब्रिटन आइलैंड के मुकाम पर अपने समर हाउस और लेबॉर्ट्री में ये अजीम शख्सियत दुनिया से आंखें फेर हमेशा हमेशा के लिए आंखों से ओझल हुई। बेल आज भी टेलीफोन की शक्ल में हमारी नज़रों के सामने रहता है। अब सुनते हैं आज की मेरी कहानी। आज की मेरी कहानी है जमशेद शाह की, जो लकड़ी पर नक्काशी करके उसे खूबसूरती बख्शता है। इस कहानी को तैयार किया है इसहाक भट्ट ने। कार्यों खराब लगभग वरी 10 वर्ष गमन स्कूल पारान तोर बह पत बहन दुकान ये कारखाना बाब सोबस बेवान ये काम करान पे काम गंट तक कर स्कूल वकूल ग तम टाइम दिवान ये पे बह स्कूल त्रो तम पे बेवान ये काम मेम्बर वनकस फैमिली मेम्बर वनकस लगभग वनकस 6 मेम्बर फैमिली सत्य पे वनकस पकान अकरा कम ब्या कम चलान गुजार ये पे इंसान कि मे गोस कह चीज वनकस नंबर 1 फैसिलिटी मान वनकस तस्वर कर इंसान वन बह वन पे सत गस मे मगर वन गो मे तम सोर्सेज कि बह नंबर 1 मिसाल जन क्वालिटी प्रोडक्ट वनकस बाजार में अवेलेबल बह मानस कुन दस्तियाब कर मानस कुन हेका बह तम हासिल कर
اگر خریدار سن آرڈر کانٛہہ چیٖز آسہِ سُہ بناوُن بیڈ ہٮ۪کان بنٲوِتھ واڈروب ہٮ۪کان بنٲوِتھ صوف سیٹ ہٮ۪کان بنٲوِتھ ڈایننگ یِم سیٹ ہٮ۪کان بنٲوِتھ بیٚیہِ چھِ آسان جولری ڈبہٕ وولری ڈبہٕ تِم ہٮ۪کان بنٲوِتھ یہِ چھُ آسان آرڈرس پٮ۪ٹھ فرمایشس پٮ۪ٹھ دارمدار. मौसमी सरमा में हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं अगर हम संतरों का इस्तेमाल करें. नेहा आज हमें संतरों के फायदे के बारे में बताएंगी हमारे नेहा के नुस्खे में. आज मैं आपको बताऊंगी संतरे खाने के चंद फायदे. कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए संतरे बहुत कारगर साबित होते हैं. संतरे में मौजूद लिमोनॉइड नाम का जुज़ कई तरह के कैंसर जैसे कि मुंह, जिल्द, फेफड़ों, पेट वगैरह से लड़ने में मदद करता है. साइंसदानों के मुताबिक संतरे और उसके जैसे खट्टे फल खाने से गले और मुंह के कैंसर होने का खतरा 40 से 50% कम हो जाता है. एक गिलास संतरे के रस में भरपूर तादाद में विटामिन सी मौजूद होता है जो कि हमारे जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत फराहम करता है. संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द से बचने में मदद करता है. इसके लिए आप रोज़ संतरे का रस या सीधे संतरा भी खा सकते हैं. संतरे में मौजूद फाइबर्स आपको कब्जी से बचाते हैं और आपके हाजमे को बेहतर बनाते हैं. संतरा खाने से टीबी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी दूर होती हैं. संतरा खाने से दांत और हड्डियां भी मजबूत होती हैं. गुर्दे की पथरी का खतरा भी संतरा खाने से कम होता है. इसलिए संतरे को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाएं. आखिर पर आज की कथपंड जिसमें हमने आपसे पूछा क्या आप ऐसा कुछ करते हैं जो माहौल बचाने में मददगार साबित होता है. मैं जब भी आई यूज्ड टू ईट चिप्स च्युइंग गम्स व्हाटएवर आई यूज्ड टू कीप द डस्ट इन माय पॉकेट एंड देन मैं फिर जाके इसको डस्टबिन में फेंकती हूँ. ये मैं करती हूँ और मैंने अभी तक कभी पॉलीथीन यूज़ नहीं किया है. जब से मैं IUST आई हूँ मैंने बहुत चीज़ें सीखी है. बाय द वे मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ लेकिन एक बात है अगर मैं इफ आई विल टॉक ऑफ द इस्लाम यूनिवर्सिटी अगर मैं इस्लाम यूनिवर्सिटी की बात करूँगा कहीं पे मैं देखूंगा ये गार्बेज मटेरियल या कहीं पे कवर ववर पड़ा होगा वो मैं उठाऊंगा और मुझे उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होगी उठाने और मैं करता भी हूँ. जितना होता है मेरी इंडिविजुअल लेवल से मैं उतना कर पाता हूँ. एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ बट अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो गाड़ी रोकनी हो या जैम हो तो उस टाइम इंजन ऑफ करता हूँ. पॉलीथीन वगैरह बिल्कुल हम अवॉइड कर रहे हैं और थोड़े से हम घर में भी प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं. अगर आप खुद भी आ सकते हो तो आप देख सकते हैं, सिर्फ कह नहीं रही हूँ. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा साथ अच्छा लगा होगा जैसे हमें आपका साथ अच्छा लगता है. हमारा आज का शुमारा आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. हमारा पता है पेश कदम डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा. या आप हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com. पेश कदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज पर हमें ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा. तो दीजिए अगले शुमारे तक फयाज नजार, सईद रुफैदा और पेश कदम की पूरी टीम को इजाजत. खुदा हाफिज. सबसे अलग है सबसे जुदा सुनो एक नई आवाज बातें नई है नया अंदाज सुनो एक नई आवाज दिल से है आपके साथ नया है ये पेश
आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।